یہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جب 5 اگست 2019 کو ہم سے ہمارا جو سٹیٹس تھا جموں کشمیر کا جب وہ چھینا گیا، تو جب محبوبہ جی کا ہمیں فون آیا کہ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو لیفٹننٹ گورنر صاحب کے دروازے پہ یہ لوگ ہمارے ساتھ سری نگر میں شامل تھے۔ اس لیے شامل تھے کہ ان کو پتا تھا کہ 5 اگست 2019 کو جو ڈیسیجن لیا گیا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آج تک کی جب میں جرنی کو یاد کرتا ہوں، چاہے مفتی صاحب کی برسی تھی، چاہے کنونشنز تھے، یہ سارے لوگ، چاہے فیاض صاحب کا ممبر پارلیمنٹ الیکشن لڑنا، چاہے ہمارا اسمبلی الیکشن لڑنا، یہ وہ لوگ۔ میں آج کی بات کرتا ہوں، آج شسائل کا آسان پینل کا اندر مزاول ہے، مگر امشاق کو بوزو مگر رات شام 9:30 بجے جیگیر میٹنگ تاید بوزم بشارت سر مناؤ کہ نیز بشارت سر میں اس نواز پر کرو اس کی تمہارے سے واقعی کرنے سے ساتھ بشارت سر کابل مشتر ہوس تمہارے سے کوئی کوئی کرو اگر اس بشارت سے بشیو تو اس کو ماسم کے طرح کرو اسے میٹنگ کنڈکٹ آج شکر میں مبارک بات کرنا کہ تم کی شیعت گویوس نیشنل کانفرنس کس منشور اسمز نمبر 1 وعد چھوٹی سویلی ایشور انن اسمبلی بل کے موجود نے آنے پاتلو گرگو پال تب اس آرٹیکل 370 ذکر کنسورس کہانی یا دلیل پاتل اوٹر پارلیمنٹ سوز وقت امینڈمنٹ بل رہی اسی وقت کی ایشو کو جو مسلمان آپشن بے کن مذہب سے تعلق ہندو برادری ایس پرن حساب کرسچن برادری ایس پرن حساب سائنس سردار برادری پرن حساب تو مسلمان چھو باقو آج ایک امینڈمنٹ جس سارے اس خلاف تاکر کے کوشش ساتھو ایم ایل اے صاحبانوں کے بارے ریزولوشن کرنے کا تین کرنے کی بلکہ یہ law ministers amendment parliament was early کال وہاں دی شادی جن کے سریے یہ اس 5 اگست برو گوڑی کلیکشن نو سیسی انہار کیا کے ساتھ زنگ سے مگر کیا نہیں مل سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے ڈیوری منسٹر یہ جو سوپر سزا ایس ڈی ہے وہ سچ ایس ڈی ایم کے وصول دیتے باز ویلی اسمبلی منسٹر محبوبہ جیس وزیر اعلیٰ اللہ تعالیٰ تیرے سے ہم نے آپ کو ایڈیشنل ٹی سی دے دیا ایک سوپر کا شخص چاہے امیر ہو یا غریب ہو مجھے یہ بتائے کہ اس نے مجھے فون کیا کہ ہمیں ایڈیشنل ٹی سی چاہیے کوئی نہیں ایسے اس نے ایم ایل اے کی تھی ایک شخص بتا دیا مگر میں باشا پڑی جائے احساس میں تو کچھ ڈسٹرکس منسٹر کسی سوپور ایسے روح مرکز میں پڑی ایمت کرنی سوچوں میں نے سوچ کے میں وہ کو بتا دیا اور ہم نے یہاں ایڈی سی لکھا اور ہم نے ترال میں بھی ایڈی سی دے دیا تب وہ میں نے ہارٹیکل منسٹر وہ اس دیمرو کو مطلب بڑی مطلب ہر دور کو کہتا ہے جو شہر بھی کرا ہوتا وہ میں نے ہارٹیکل منسٹر وہ کو دس گز بڑھ سوپور منڈی ہم سارے وہ ان دور آقا سے تمہیں یاد کی تکلیف ساتھ ہے سیٹ ہوئی کہ میں ایسا نہیں ہے یہ دور وہ تو تمہیں میں پرابلم میں نے ایک پرابلم اس کو آسان کرو سیر والے مورد بات ہے ہاتھ آئے اگر افیکٹلی حالت سروز اسی منچ پرابلم ایمن کیا کرے اگر بنا آؤز مالت سی میرا بڑائی اتنے سے کیم نہیں وہ کچھ سرلگن میں بڑائی اتنے سے کیم نہیں آکھ تنگرہار ریان میں ڈھوپورا بیاد تکیبل ووگو بیاد گرینجی کروں ایمن ترشیر بڑائی میں سکیم ایمن بڑائی میں بیل تم ساتھ اس والا کیمپانش بند 21 کلومیٹر سے اس نے وہ چیز بند کر دی امپرووز انہی رشید صاحب نے پارٹی سے بغان بغان میں عوام تو سارا سرکارا
which Abdul Hamid leads Setha Mubarakbad Chairman Diniman. थोड़ा सा दूर चले अब मैं क्या कह सकता हूँ ये उनको स्टेटमेंट कहाँ से लेना और गए कहाँ इट इज ये तो वही हुआ ना वो बात कश्मीर में बना लड़किन या पंजाबी में कहते हैं वो बठंडा वही बात हुई मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हो सकता है वैसे हो जाए नेवर नो सर पीएसी सर हाल ही में एक पीएसी बन गई सर पीडीपी की सरगर्मियां पिछले एक महीने से काफी ज्यादा तेज हो रही है। वही अगर देखा जाए कि पुराने दरअसल क्या है कि जब कोई सरकार बनती है तो अपोजिशन के लोग जो होते हैं वो भी साल 1.5 साल 2 साल बात ज्यादा नहीं करते, कहते हैं इनको वक्त दे दो, ये धीरे धीरे काम शुरू करेंगे, अभी वक्त मिलना चाहिए, जब नहीं करेंगे तब बात करेंगे। सर हाल ही में लेकिन इस सरकार का ये कि ये पहले दिन से ही उन्होंने सारे हथियार डाल दिए और कोई काम न करते न कुछ करते, सिर्फ घूमते रहते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है हमें मजबूरन शुरू से मतलब सरकार बनी और हमें भी अपोजिशन का रोल पहले जैसे निभाना था, शायद 2 साल बाद निभाना चाहिए था, हमने पहले निभाना पड़ा क्योंकि जरूरत थी, लोगों की जरूरत है, बात करनी है, बात सरकार तक पहुंचानी है, फिर वो देखते हैं अलग सरकार क्या करती है, लेकिन हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। सर हाल ही में एक अलायंस बनी है सजाद गनी लोन की जेर सदारत में पैक के नाम से, क्या कहेंगे इस सवाल से, किस रद्द-ए-अमल से आप इस चीज़ को देखते हैं? उसमें अभी गया नहीं, मैं घर में बहुत सारी मसरूफियात थी तो मैं उसमें भी घुसा नहीं। सर आपको क्या लगता है ये आर्टिकल 370 की बात करें, स्टेटहुड की बात करें, एक बार फिर इस पे सियासत की जा रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि लोगों के अभी भी मुश्किलात हल नहीं हो रहे हैं। बात वो नहीं, बात ये कि अगर आपने कोई मंशूर में कोई बात रख ली और उस पर वोट ले लिया तो बात करनी है, अगर नहीं करनी थी बात तो रखा क्यों? सीधी सी बात है ना। अगर आप घर में अगर आप अपने घर में कहेंगे कि मैं आपके लिए एक बड़ा टेलीविजन लाऊंगा, आप छोटा सा टेप रिकॉर्डर लाएंगे, तो क्यों कहा टीवी लाऊंगा? आपको कहना चाहिए टेप रिकॉर्डर लाऊंगा। सर 13 जुलाई की बात 13 जुलाई को लेकर छुट्टी की मांग हो रही है, तो 13 जुलाई जो वो शोहदा हैं, बिल्कुल हाँ 1931 में जो उन्होंने शख्सी राज के खिलाफ एहतजाज किया और फिर जाने कुर्बान कर दी, निछावर कर दी, हमें एहसास है कि अगर आज भी हम किसी तरह से जमहूरियत में हैं तो उन लोगों की वजह से हैं और उस पर छुट्टी भी होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर उन्होंने उस वक्त के शख्सी राज के खिलाफ लड़ा तो बीजेपी सरकार ने उनकी छुट्टी ख़त्म क्यों कर दी? तो फिर 47 से पहले जिन लोगों ने शख्सी राज या अमरीका या इंग्लैंड या जो बरतानिया का रूल था उसके खिलाफ लड़ा तो वो क्या गलत था? ये गलत था क्या वो सही है? तो इसलिए मैं हैरान क्या होती है मुझे कि अगर शख्सी राज के खिलाफ, इवन जम्मू के लोग शख्सी राज के खिलाफ लड़ रहे थे, या अगर हमें परेशानियां तब थी शख्सी राज में, डज दैट मीन कि जम्मू में बन्नी, बसोली, उधमपुर, क्या वहाँ प्रॉब्लम नहीं था? क्या वो तड़प नहीं रहे थे? उनको मुसीबतें नहीं थी? उनको भी थी। अब इसको मजहब बीच में लाते हैं, लेकिन ये एक शख्सी राज के खिलाफ था, विदाउट रेफरिंग टू कौन किस रिलीजन से है, हमें उससे गर्ज नहीं है। एक शख्स, मान लीजिए अगर कहीं मुसलमान भी खराब होगा, क्या उसको आप मानेंगे? अगर ज्यादती करेगा आपके गांव में, आपके देहात में, आपके मोहल्ले में, क्या उसकी बात आप मानेंगे क्योंकि ये मुसलमान है, क्योंकि इसको करने दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोगों का जो शऊर है, जो उनकी दानिशमंदी है, हमेशा उस पर हमें एतबार करना चाहिए, बिकॉज लोग ही फैसला करते हैं जमहूरी निज़ाम में। सर एक हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो किसी पर एतबार करते हैं और वो उस एतबार पे या उतरता नहीं है या एतबार पे या वो काम पूरा नहीं करता है, तब भी लोग लेके फैसला कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि लोग बेहतर फैसला होना है, न किसी को कुर्बान होना है। मिसाल के तौर पर अगर स्टेटहुड वापस आता है, अगर रूल में ये है कि ये असेंबली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया इलेक्शन होगा, इसमें किसी के हाँ या, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है ना, इसमें इनके हाँ या ना की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंट्रल रूल है, जो कानून है, उसके मुताबिक असेंबली मिसाल ख़त्म हो जाएगी, तहलील हो जाएगी।
ये अगर ना भी कहें तब भी हो जाएगी। तो इसमें कौन शहीद हो जाएगा, कौन कुर्बान हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, आज हमारी पार्टी का यहाँ पे कन्वेंशन था। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी पार्टी, चाहे साउथ कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर है या नॉर्थ कश्मीर है। नॉर्थ कश्मीर की आज हमारी पहली यहाँ पे जो है सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की ये आज मीटिंग थी, जिसमें हमारे जो सीनियर जो कारकुन हैं यहाँ पे या जितने भी इसमें हमारी लेडीज विंग जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सभी जो है आज हमने यहाँ पे एक कन्वेंशन किया। उसमें बहुत सारी, आपको पता ही कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आज जो है, दूसरा जो आपको पता ही है कि जो सरकार बनी, जिस सरकार ने यहाँ पे 50 सीटें ली, उनकी क्या कारकर्दगी है, ग्राउंड पे हमें ये पता चलता है कि सरकार की होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो जिस तरीके से, अगर आपको याद होगा कि पहली बार खासकर कश्मीर वादी में, जहां हम बैठे हैं अभी सोपोर में, जहां 10% लोग भी वोट नहीं डालते थे, यहाँ पे भी 60% वोट। और ये उम्मीद लेकर कि ये जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये उनको एड्रेस करेंगे। जैसा आपने खुद भी कहा कि सरकार, जो लोग जो है वो बड़े निराश हैं। बिल्कुल सर। आपने खुद भी देखा, पीने के पानी के लिए आज जो है लोग सड़कों पे हैं। एग्रीकल्चर का जो है आपने देखा हर जगह कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी भी स्कीम्स है वो मतलब कहीं पे हुकूमत का कोई भी मतलब जैसे होता था पहले, सरकार इसलिए बनी थी, मान के चलो कि इनके पास अभी यूटी में 10 ही मिनिस्टर, जो सरकार अपने मिनिस्टर नहीं, एक मिनिस्टर के पास 17 महकमे हैं। इनको अगर 9 मिनिस्टर बनाने से कम अगर वो मिनिस्टर ही इन्होंने बनाए होते, वो इलाकों में जाते, लोगों के मुश्किलात सुनते। इन्होंने वो भी नहीं बनाए। जहाँ ये स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, स्टेट तो हमें मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह, लेकिन यूटी में जो इनके 9 मिनिस्टर होने चाहिए थे, एक मिनिस्टर के पास, उमर साहब के पास कोई 17 से 20 महकमे हैं। और वो कभी जब उसको मौका मिले, अगर उसको गुलमर्ग या कहीं और से मौका मिले, तो वो सेक्रेटरीट जाता है। लोगों के जो मुश्किलात है वहाँ फाइल्स पड़ी है, लोगों के जो मुश्किलात है उनका जो है अंबार वहाँ पे चढ़ गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, जहाँ तक 13 जुलाई का सवाल है, ये तो हम सबों को पता है। कोई क्या कहता है, हम वहाँ पे जाएंगे और किसी का इसमें कोई मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करता है वो हमारा दुश्मन है। जब तक किसी और में जिन्होंने आज ये समझा कि नहीं हमें इस फील्ड में आना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है, हर एक को आना चाहिए। देखिए, जिस सरकार को हमने बनाया, 38 साल इन्होंने पहले सरकार यहाँ पे चलाई है, आज फिर हमने इनको मैंडेट दिया, इनकी बातों पे यहाँ के आवाम ने भरोसा किया, लेकिन आज आप खुद ही देख रहे हो। जहाँ तक स्टेट हुड का ताल्लुक है, अगर मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस मेरा है, हमारी पार्टी का है, वो है 370 वापस। हमारा जो स्पेशल स्टेट्स है वो वापस मिलना चाहिए। स्टेट हुड वापस कोई हमें, देखिए यार, वो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कमिटमेंट है। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्टेट हुड जो है एक हक है, वो हमसे जो छीना गया, हम सिर्फ स्टेट हुड की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हर एक चीज़, वो जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो आज अपना मैंडेट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि यहाँ ड्रेनेज का काम करना है, यहाँ बंड बनाने हैं। उन्होंने इसीलिए दिया था कि उमर साहब ने ये कहा था कि आप मुझे ये ताकत दे दो, मैं हर एक चीज़ वापस लाऊंगा। लेकिन आज आप देख रहे हो वो शाल लेके घूम रहा है, बाकी तो कोई काम है नहीं। जो लोग कल तक बड़ी बातें कर रहे थे, आज इस कौम को जिस लीडर की ज़रूरत थी, जिसके लिए लोगों ने यहाँ पे मैंडेट दिया था, वो नहीं मिला। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम जैसे आज गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे, इनकी नाकामियाँ, इनकी जो इन्होंने कहा था लोगों से, इन्होंने जो 3 महीनों में 1 लाख लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देने की बात की, कहाँ है, कहाँ गया वो रोज़गार? डेलीवेजर्स के इन्होंने की थी कि हम इनको परमानेंट कर, कहाँ गया? इसी तरह 200 यूनिट फ्री, इसी तरह 12 गैस सिलेंडर। क्या पीडीपी के अरकान इस हवाले से लड़ेंगे आगे? इंशाल्लाह, आपने खुद भी देखा, हम 3 ही हैं असेंबली में, हमने हर एक वो मसला उठाया जिसके लिए जो इन्होंने वादा किया था, वो हमने उठाया और आगे। खान साहब, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, कन्वेंशन के हवाले से? पार्टी लीडरशिप का एक प्रोग्राम है जहाँ पर कि हर एक कंस्टिट्यूंसी में सीनियर लीडरशिप जाएगी और वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। आज सोपोर में भी वर्कर्स कन्वेंशन हो गया आफ्टर असेंबली इलेक्शंस, कि जो लोगों को अंदर दर्द है, जो दुख है, जो 370 पे वोट्स लिए गए थे लोगों के साथ, जो 35 पे लोगों से वोट्स लिए गए थे, या 200 यूनिट्स फ्री देने की बात हो गई थी, 12 सिलेंडर्स फ्री देने की बात हो गई थी, और 5 सालों में जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 सालों में जो वादा एक किया गया था, एक कमिटमेंट की गई थी इस जम्मू कश्मीर की सरकार ने कि हम 5 लाख नौकरियाँ फराहम करेंगे। तो उसके लिए जो हमने कन्वेंशन करवाया था, आज वर्कर्स जो है उस चीज़ का कन्वेंशन हो गया।
क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि अभी तो हमें सिर्फ 1 ही साल मुकम्मल हुआ है, लोगों को हम जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया है, हमें हम पर ट्रस्ट करना चाहें, तो आप क्या करना चाहेंगे? वादा ये किया गया था कि 5 सालों में हम 5 लाख नौकरियां दे देंगे। 1 साल तो हो गया, तो 1 लाख नौकरियां दी गई। सोपोर के हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम सोपोर की बात करें, क्या कुछ डेवलपमेंट के हवाले से आपको लग रहा है सोपोर के अंदर जब से हुकूमत हुई है? सबसे जो बड़ा ग्रेव इशू यहाँ पे था वो डिवाइडर्स का था। डिवाइडर्स वहीं के वहीं पे हैं, जबकि आपके ऑनरेबल एमएलए ने बोला था कि मैं ईद के बाद डिवाइडर्स पे बिल्कुल बात करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ईद को भी आज 2 महीने हो गए हैं और डिवाइडर्स वहीं के वहीं हैं। जो आपके सामने राइट अपोजिट टू यू इज़ community health center. People called it SDH. It's not SDH. I'll tell you again and again. I have told you n number of times that it's not SDH. ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, इट्स ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसको अपग्रेड करने की कोशिश की गई थी, बोला गया था कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना नहीं, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही अभी तक। सर सोपोर बहुत सारे मसाइलों में जूझ रहा है, कहीं ना कहीं कभी डंपिंग यार्ड को लेके, कभी डिवाइडर, जैसे कि आपने कहा कि डिवाइडर्स की यहाँ काफ़ी ज़्यादा सियासत हो गई। डंपिंग यार्ड बड़ा इशू है यहाँ पे, या ड्रग एडिक्शन सेंटर हमारे पास नहीं है, तो इसके हवाले से एक्स म्युनिसिपल काउंसिल की जो चेयरमैन थी, इससे पहले जब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए थे तो और डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए थे उसके साथ, इसी पार्क में एक वादा दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एक वादा लिया गया था जिस दिन आपको याद होगा कि मैंने रिज़ाइन किया था। ये वादा दिया गया था कि हम जो हैं डंपिंग साइट जो है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको हम कंप्लीट करके दे देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने वादा दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद एक कमिटमेंट यहाँ पे की अलॉन्ग विद द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर। तो आज तक वो वादा अगर आपको लगता है पूरा हो गया तो सब चीज़ें आपके ड्रग एडिक्शन सेंटर बहुत बड़ा मसला है। रिहैबिलिटेशन सेंटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू सी द ग्राउंड रियलिटी, and the ground reality at this point of time is कि it's Sopore was never a consumable market for drugs. It was a wholesale market, but unfortunately it has become now a consumable market for drugs. लेकिन हाँ, उस पर कोशिश ये होगी कि जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, जो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, तो अगर बच्चों को बचाना है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है सोपोर में पानी का बेरिना मामला बन चुका है, लोग जूझ रहे हैं। हिंसा देने वाली गर्मी में भी ऑलमोस्ट अगर सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 15 लाख गैलन पानी जो है उन्हें हर दिन डेफिसिट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि ये सवाल अगर आप ऑनरेबल एमएलए से पूछेंगे वो इसका बेटर जवाब दे सकता है। वो जवाब ये दे सकता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी इफ़ यू आर इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ 2025, इफ़ यू हैव टू बैक फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़ देन इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट, इट शुड रिजाइन फ्रॉम द सेंटर। दे आर डूइंग दैट। थैंक यू।